So dear students, in this video I will start chapter 1, relations and functions of class 12th NCERT. So let us start first. What is a relation? About relation we have studied in class 11th also. So first let us revise what is relation. Suppose we have two sets A and B. A is containing elements 1, 2, 3, 4, and then we can relate elements of set A to elements of set B. Like one way of relating may be 1, 4 and 2, 3. 1 is related to 4, 2 related to 3, and this is one way of writing the relation in the form of ordered pair, like 1, 4, 2, 3. These are two ordered pairs. And why we connect this? There will be some rule here. That rule may be, in general you can write like this: x, y. So R1 is a relation containing ordered pairs of type x, y, such that x plus y is odd number. X belongs to A, y belongs to B. So these are three ways of, this is using the Venn diagram method. This is called the roster method of showing the relation, and this is called the set builder form. Set builder form of writing the relation. Same relation R1 can be written in these three ways, where one element of set A is element related to some other element of set B. Another relation you can define like R2, and now you can connect say 1 to 3 and 2 to 4. This is another way of containing the relation. So what way it can be defined? In set builder form, it will contain ordered pairs x, y such that x plus y is even, x belongs to A, y belongs to B. And all these pairs will come from A cross B. All these ordered pairs which are coming in R1 or R2 will come from A cross B. How many elements A cross B will have? 2 elements in A, 2 elements in B. So therefore total 4 elements: 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So all relations will be found by taking one or more ordered pairs from this collection. If you take 1, 4, 2, 3, you get this relation. If you take 1, 3, 2, 4, you get this relation, depending upon what is the condition of forming the relation. तो हमने देखा अब तक, ये रिवाइज कर रहे हैं कि 11th में आपने रिलेशन में क्या पढ़ा है कि दो सेट होते हैं आपके पास. तो दो सेट में, एक सेट में पहला सेट A है, दूसरा B है. A और B के बीच में रिलेशन है अगर आपके पास, तो A के किसी एलिमेंट को B के दूसरे एलिमेंट से रिलेट करना होता है, कनेक्ट करना होता है. जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि 1 को 4 से कनेक्ट किया गया, 2 को 3 से कनेक्ट किया गया. ये डायग्राम में दिखा दिएगा, वेन डायग्राम मेथड है ये. और दूसरा है कि इनको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दीजिए, ये रोस्टर मेथड है. और तीसरा मेथड है सिर्फ आप वो रूल बताइए जिसके बेसिस पर एलिमेंट्स को जोड़ा जाना. जैसे यहाँ पर क्या रूल है कि इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर आपको लिखने हैं जहाँ पर x प्लस वाई ऑड नंबर आए. तो x कहाँ से होना चाहिए? x A का एलिमेंट होना चाहिए, y B का एलिमेंट होना चाहिए. ये से बिल्डर फॉर्म है. तो इस तरह से 1 को जब आप 4 से देखते हैं क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 1 4 को ऐड करने पे ऑड नंबर मिलता है. ऐसे 2 3 को ऐड करने पे भी ऑड नंबर मिलता है. ऐसे एक और रिलेशन ये भी हो सकता है आपका, जहाँ पे 1 को 3 से जोड़ा गया, 2 को 4 से जोड़ा गया. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x प्लस वाई आपका इवन नंबर है. तो इस तरह से, और मेनली सारे ऑर्डर पेयर जो भी आ रहे हैं सारे आपके A क्रॉस B से आते हैं. A क्रॉस B जो होता है इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी से सारे ऑर्डर पेयर लिए गए हैं. इसमें से कुछ आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं. ये किस पर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका रूल है. रूल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये रिलेशन बनेगा आपका. तो ये दो सेट की बात हुई. इसी तरीके से आपका एक सेट पे भी रिलेशन हो सकता है. So now relation on set A. So a relation
on a set A is defined as a subset of A cross A. So A cross A, if there are two sets, it will be subset of A cross B. So for example, if we have, and now we have to consider about types of relations. Types of relations. Types of relations means first is say universal relation. Universal relation. If all elements of set A are related to all elements of A itself, then relation is universal relation. Universal relation. So this is the definition for universal relation. Here it should be if. So if all elements of set A are related to all elements of A itself, then relation is universal relation. For example, you can have a set A, just as before, you can take 1, 2, and a relation you can have. Then what is A cross A? A cross A is 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. And if you define a relation R containing order pair of x, y type, where x plus y is less than 5, where x, y belong to set A. So now what order pairs will come here? You can see, you have to check those order pairs will come where sum is less than 5. So here sum is 2, sum is 3, sum is 3, sum is 4. So all order pairs will come here. So therefore here this type of relation, it is a universal relation. Because all elements of given set are related to all other elements. 1 is related to 1 also, 1 is related to 2 also, 2 is related to 1 also, 2 is related to 2 also. In this way all the elements are, this type of relation is called universal relation. तो ये relation का definition हो गया. Relation क्या होगा? A क्रॉस A का एक सबसेट होगा. जब जैसे आप ये आपने दो सेट के लिए देखा, ऐसे एक सेट के लिए होगा तो दोनों सेट सेम हो जाएंगे आपके. और अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं. पहला टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन, जहाँ पे किसी भी सेट ए के सारे एलिमेंट्स, उसी के सारे एलिमेंट्स आपस में सारे रिलेटेड होते हैं, तो उस टाइप का रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा. जैसे आपका सेट लिया गया 1, 2, अब ए क्रॉस ए ये है आपका, ए क्रॉस ए में सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं. अब इसमें आप देख सकते, अगर ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं कि x प्लस वाई 5 से कम हो, ऐसे ऑर्डर पेयर लेना तो इसमें सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे. इसलिए ये फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल रिलेशन आ गया. सो टेक द अदर टाइप ऑफ रिलेशन. सेकेंड टाइप इज एम्प्टी रिलेशन. Empty relation is if no element of set A is related to any element of set A. If no element of set A is related to any element of set A, then A is called an empty relation. तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन का कंडीशन है कि अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी और एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है तो इसको कहेंगे आप ये एम्प्टी रिलेशन है.
अब देखिए यहाँ पर जैसे एक के लिए आपने लिया A12 था यहाँ पे, और उसके लिए क्रॉस है यहाँ पर। अगर आप कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन करते हैं containing order pair x y such that x plus y is equal to 10, x y belong to A, तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आपको लेने पड़ेगा जहां पर x और y का सम 10 हो। अब इसमें आप कोई भी ऑर्डर पेयर आप लेकर देखिए, कहीं भी सम आपका 10 नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका एक एम्प्टी सेट मिलेगा और 5। So these are two special type of relations, universal relation and empty relation, and these are also called trivial relations. Universal relation and empty relation are also called trivial relation. ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल का मतलब होता है यूजलेस, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा काम के रिलेशन नहीं है, लेकिन एज ए डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं जो मेन आपके टाइप ऑफ रिलेशंस है उनको देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन आर in the set A is called reflexive if A belongs to R for all A belonging to set A। इस तरीके का रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जहां पे A is related to A, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन R in the set A is called if A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R। So now next type is transitive relation। Transitive, a relation R in the set A is called transitive if A1 A2 comma A2 A3 belong to R, this together implies A1 A3 belongs to R। A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 present in A। So these are three special types of relations। First is reflexive। Reflexive, so relation R will be reflexive if A belongs to R or all A belonging to A, then it is symmetric if relation R is, if A1 A2 belongs to R, then A2 A1 should also belong to R for all A1 A2 belonging to A। And for transitive, if A1 A2 comma A2 A3 are present in R, then A1 A3 should also be present in R for all A1 A2 belonging to A। तो इन तीनों टाइप के रिलेशंस में आपको क्या क्या देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये देखना होगा कि ए टाइप के सारे ऑर्डर पेयर उसके अंदर मिले आपको, ये सारे ए के लिए होना चाहिए। जितने भी सेट में एलिमेंट आते हैं सबका इस तरीके का डबलेट वाले ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए आपको। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना होगा कि अगर A1 A2 R में है तो A2 A1 भी R में होना चाहिए। ये सारे A1 A2 के लिए होना चाहिए, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास R में आते हैं उन सबका रिवर्स पेयर भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा रिलेशन। और ट्रांजिटिव तब होगा अगर A1 A2 R में है, A2 A3 भी R में है, तो A1 A3 भी R में हो जाए। मतलब इसमें ध्यान देना आपको, ये दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर बनेगा जो इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट से बनेगा, वो ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर है तो उसको कहेंगे आप कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation, a relation in the set A is called equivalence relation if it is reflexive, comma, symmetric and transitive all at the same time, all at the same time. So this is the relation known as equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? कोई रिलेशन आपका है, जैसे कैपिटल आर है किसी सेट ए में, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहा जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो एक ही टाइम पे, मतलब उसमें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ मिले, तब उसको आप कहेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस की बात की हमने, कि कैसे रिलेशन आपके मेनली दो टाइप के, पहले ट्रिवियल रिलेशन पढ़े जहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन आया, उसके बाद एम्प्टी रिलेशन आया, उसके बाद फिर मेन आपके ये तीन रिलेशन है। मेनली क्वेश्चंस आपको इन्हीं पे ज़्यादा करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई है किसी रिलेशन के लिए, कि अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके क्वेश्चंस और करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।